and welcome everyone. Welcome to the India's largest learning platform, Unacademy. I am Ankita and today we are going to learn a new topic, that is kinematic equations. Okay. So kinematic equations, you must have heard this and also you must have learned this in 9th standard. So these equations are very much important. In what sense? Let us understand that. You must remember these equations, but before that we will discuss what is the importance of this. So let's say I imagine I start my journey from, let's say, station A and station B I am reaching to in, let's say, 10 seconds. Okay, and the journey is with constant velocity and let's say the distance is 10 meter. Then what was the velocity of journey, right? Or what was the speed with which we covered the distance? How can we calculate that? And also this is very important in different phenomena, like let's say the airplane is moving, then what velocity with which it is moving, then how the turbulence of the air around it is occurring. Okay, so we need to understand many such things, and for that we will understand this basic concept of kinematic equations. Let us revise them quickly. So the equations are v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2as, s is equal to ut plus half at square. बट आप लोग कहोगे कि मैम ये तो बहुत दिन हो गए पढ़ के, अब तो कुछ याद नहीं आ रहा है, ये v क्या है, u क्या है, सब कुछ नया लग रहा है. तो एक रिकैप इसके लिए भी देख लेते हैं. What is v? Final velocity. U is initial velocity, and remember that it's a velocity, so it's a vector quantity. What is vector quantity? It should have डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों होना चाहिए उसके पास, राइट? एंड इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, बट हियर वी आर यूजिंग वेलोसिटी, सो इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. तो एक डायरेक्शन सेट कर लेंगे हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव. ये वैल्यूज को याद रखना पुट करने के पहले, ठीक है? Next is A. What is this A? Which is in all three equations. So A is nothing but acceleration. Remember, change in velocity per unit time, right? So that acceleration has unit meter per second square. And this is also a vector quantity. So again, positive negative का ख्याल यहाँ पे भी रखना है. T is time and time is scalar quantity, right? तो इसका तो कोई direction नहीं है. It is in second, and s is displacement. Again it's a vector quantity. What is the unit of it? Meter. So distance and displacement दोनों ही का unit meter है, but दोनों में फर्क है. Displacement is a vector quantity. If you move from one point to again coming back to that point, your displacement is going to be 0, right? Remember all these points. So एक बार quickly इसको लिख लो, revise कर लो. We are going to solve more and more number of questions. We will start with very easy case and we will go up to higher and higher difficulty levels. Okay, लिख लो इसको. Okay, so you are done with those revisions. एक बार question देख लेते हैं, छोटा सा easy question. I will explain the question, फिर इस वीडियो को pause करके खुद से एक बार इसको try करना है और उसके बाद solution देखना है, ठीक है? एक बार खुद से try जरूर करना है. See, a car starts from rest. इसका क्या मतलब है? ये rest से start कर रहा है, मतलब इसका initial velocity 0 है, राइट? एंड इनिशियल वेलोसिटी याद रखो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. जैसे हमारा बर्थ डेट, एक बार हमने जन्म ले लिया है तो हमारा बर्थ डेट हमेशा वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा. होगा क्या? कभी चेंज नहीं, राइट? सो इनिशियल वेलोसिटी इज लाइक दैट ओनली, कभी भी चेंज नहीं होगा, एक बार फिक्स है, बस वही है. सो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. अब सोचो आगे क्या लिखा है? विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये वर्ड यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब वो चेंज नहीं होगा, तभी हम ये तीनों इक्वेशंस लगा पाएंगे. याद रखना, काइनेमेटिक इक्वेशंस में एक ही वैल्यू है. देखो, तो जहां पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ओनली देयर यू कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस. ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है क्या क्या? कैलकुलेट करो. वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5. सो सोचो, वी हैव अ कार, लेट्स से, एंड दिस कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या है? 0 और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड.
नहीं दिया है, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव ही है, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। अगर तुम लोग चाहो तो उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो, साइन कन्वेंशन अपने ऊपर है, ठीक है। सो आई एम कंसिडरिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कैसा क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है ये, राइट। और याद रखना स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसमें जो डिस्टेंस कवर होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो जैसे ही इसने स्टार्ट किया, लेट्स से यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड था, फिर ये आगे बढ़ रहा है, लेट्स से यहाँ t इज इक्वल टू 1 2 और यहाँ जाके फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इस पॉइंट पे जब ये कार पहुंचेगा इसकी क्या वेलोसिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड, 0 से लेकर पहले 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी कैलकुलेट करना है, और यही इक्वेशन से इन्हीं के हेल्प से यूज करके इनको सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, चलो जल्दी जल्दी। चलो आई होप तुम लोगों को आंसर मिल गया है, तुम लोगों ने कोशिश तो की होगी अपने हिसाब से। एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं and we will verify your answer, okay? So first look at the question. Question is asking for velocity. We have velocity here and here as well. यहाँ कोई velocity नहीं है, final velocity नहीं है यहाँ पर. So this equation is right now not useful. Now look at this. V plus AT, U plus AT and U square plus 2AS. Always prefer the equation जिसमें minimum calculation है. तो देखो यहाँ स्क्वायर नहीं करना है, राइट। यहाँ तो स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा, बट डिपेंडिंग अपॉन अगेन क्या क्या गिवन है अकॉर्डिंगली हमें फॉरवर्ड करना है, ठीक है, इस चीजों को। u अवेलेबल है, एक्सेलरेशन अवेलेबल है एंड टाइम भी अवेलेबल है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद का वेलोसिटी पूछा है, तो सिंपली ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। राइट डाउन द गिवन, v इज इक्वल टू u प्लस 8, u कितना है 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहले तो स्टेशनरी खड़ी थी कार, उसके बाद स्टार्ट हुआ है कितना एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी 2 into 5, सो यहाँ पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। सच में कार चला के नहीं देखनी है, तब भी हमें इसके आंसर्स मिल जाएंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ काइनेमैटिक इक्वेशंस। गॉट दिस? चलो ट्राई करो सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए यू कैन यूज दिस इक्वेशन ऑल्सो, बिकॉज रेस्ट एवरीथिंग वी हैव एक्सेलरेशन, वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव फाइनल वेलोसिटी, बट स्टिल वी विल ऑल्सो थिंक अबाउट द अदर इक्वेशन। देखेंगे किसमें ज्यादा इजी है कैलकुलेट करना। नाउ सी, एस इज डायरेक्टली इन सब्जेक्ट हियर, ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे, एंड इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है, ये टर्म सीधा ही हमारा 0 हो जाएगा, because initial velocity is 0, this term is directly 0. So finally we will be using this 0 plus half, acceleration कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर into टाइम कितना है 5 और उसका स्क्वायर। So देखो 2 will get cancelled and displacement will be 25 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ 25 मीटर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ये तो काफी इजी था, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा हाई लेवल इसके करेंगे, ठीक है, लिख लो इसको। सो वी हैव अ न्यू क्वेश्चन विद अस, एंड एक बार क्वेश्चन देखो क्या है। अ बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, वी हैव अ बॉल एंड वी आर थ्रोइंग इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इस वेलोसिटी से हमने एक छोटे से बॉल को ऐसे ऊपर फेंका है, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड। जब तक ये बॉल हवा में है, जब तक ये फ्लाइट में है, जब तक इट इज नॉट कमिंग बैक टू ग्राउंड, हर सेकेंड के बाद इसकी क्या वेलोसिटी है, क्या डिस्टेंस कवर्ड, क्या डिस्प्लेसमेंट, एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड। नाउ यू विल सी, ये तो इट्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा एक स्लाइट ट्रिक यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार एक अजम्पशन लिख लो। अजम्पशन ये है
कि हम अज्यूम करेंगे देयर इज नो एयर फ्रिक्शन एट ऑल, एयर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा एक अजम्पशन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी कहते हैं ना 9.81, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज डाउनवर्ड एंड विच इज कांस्टेंट। डाउनवर्ड तो है ही, हम अज्यूम नहीं कर रहे उसको, बट ये कांस्टेंट है। अब तुम लोग कहोगे कांस्टेंट ही होता है वो तो, बट नहीं। इमेजिन यू आर थ्रोइंग अ बॉल विद अ वेरी हाई स्पीड एंड इट इज गोइंग टू लेट्स से सैटेलाइट को टकरा के वापस आ रहा है, तो बहुत ज्यादा हाइट होगी, तो जी का वैल्यू जैसे जैसे ऊपर चलोगे वैल्यू रिड्यूस होता है। तो हम अपने इस बॉल को इतनी जोर से नहीं फेंकने वाले। हमारा देखो वेलोसिटी कितना छोटा है, 30 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जाएगा अभी पता चल जाएगा हमें। तो इतना रेप्लिका बना देते हैं इसका। ये बॉल है लेट्स से, और इसको मैंने फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर कितना वेलोसिटी है इसका, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट and we can take that as 10. This g is 10 meter per second square. Yes, in mostly cases we are using 9.81. If mentioned, we have to use 10. जैसे दिया होगा वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं दिया है 9.81, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है u is equal to 30 मीटर पर सेकेंड, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड उसको हम अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं 9.8 के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड। सोचो ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन एक्चुअली रिटार्डेशन है फॉर दिस, क्योंकि बॉल तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक्सेलरेशन इसको नीचे खींच रहा है। अब ये एक्सेलरेशन है क्या, ये है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर 30 है तो एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी इतने से कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि ये g जो है नीचे की तरफ है, वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है। तो जैसे ये ऊपर जाएगा, लेट्स से यहाँ t इज इक्वल टू 1 पर, यहाँ t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 1, एक पूरा सेकेंड हो चुका है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। हुई ना 10 से कम, राइट। अब आगे का पूरा आइडिया तुम्हें लग गया है। देखो 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 20, t इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आएगा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, आइडिया आ रहा है बिल्कुल। और थोड़ा आगे चलो, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यहाँ पर क्या वेलोसिटी होगा बताओ मुझे, 30, 20, 10 एंड नाउ वेलोसिटी इज 0। तो क्या बॉल वहीं पे रुक जाएगी, वेलोसिटी 0 है। बट ये सोचो वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। एक्सेलरेशन जब तक है तब तक इसका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। जैसे ही ये बॉल ऊपर जाएगी, कभी भी ऑब्जर्व करना, गार्डन में जाते हो बॉल ऊपर फेंकते हो, ऊपर जाती है, फिर 1 मिनट ऐसा लगता है ना मोमेंटरीली रेस्ट पे है एंड देन इट इज कमिंग डाउन। अब क्योंकि एयर है वो थोड़ी इधर उधर हो जाती है, यहाँ पर एयर है ही नहीं, तो जैसे जा रही है वैसे ही एग्जैक्ट वही पाथ फॉलो करके नीचे आ जाएगी। बट अगर यहीं पर मैं नया पाथ बनाऊंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो ये जो रिटर्न का पाथ है, लर्न करो कि ये सेम होना चाहिए, बट आई एम ड्रॉइंग इट लिटिल बिट शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू डाउनवर्ड, ठीक है। याद रखना, नोट दैट आई एम ड्रॉइंग इट साइड वे बिकॉज हमें थोड़ा अच्छे से लिखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को, राइट। अदरवाइज इन प्रैक्टिकल अगर ये जैसे जा रही है वैसे ही वापस आएगी, क्योंकि एयर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने अज्यूम किया वेलोसिटी 0 ही है, मोमेंटरीली इट विल स्टॉप, इट विल नॉट स्टॉप एक्चुअली, मोमेंटरीली एकदम बहुत छोटे से टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी 0 होगी। और फिर उसके बाद यहाँ एक्सेलरेशन फिर भी डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में डेवलप होगी, ऑब्वियसली डाउनवर्ड। और किस रेट से डेवलप होगी हमें पता है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही हम यहाँ है t इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और क्या वेलोसिटी होगी यहाँ पर वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब तुम लोग कहोगे यहाँ वेलोसिटी 10, यहाँ भी वेलोसिटी 10, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। यहाँ वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड है
और अपवर्ड चीजों को हमने पॉजिटिव लिया है, तो दिस इज +10। यहाँ सोचो वेलोसिटी कहाँ पर है, बॉल नीचे आ रही है ना, तो ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो यहाँ हम लिखेंगे -10। समझ में आ गया वेलोसिटी रिवर्स कैसे हो गई। सी मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, बट क्योंकि इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, वी हैव टू पुट माइनस साइन। सो हियर वी आर यूजिंग साइन कन्वेंशन, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तो आ गए t इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5 पे क्या होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी -20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, अगर ये माइनस साइन तुमने खुद समझ लिया है अभी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार मैं बता देती हूँ, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसके लिए नेगेटिव। ठीक है, एंड क्योंकि ये 20 है, यहाँ पे 20 है, देखो +20 -20। सिमिलरली हियर इट विल बी डाउनवर्ड, एट t इज इक्वल टू 6 वेलोसिटी विल बी -30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, देखो कैसे एकदम सिमेट्रिक हो रहा है चीजों को। जैसे यहाँ पर 30 20 10 0, वापस आते टाइम 0 -10 -20 -30, राइट। सो इट इज कमिंग बैक इन 6 seconds। अब इसको लॉजिक लगाओ, when you are throwing a ball with 30 मीटर पर सेकेंड, 3 seconds ऊपर 3 seconds नीचे, तो अगर ऐसे ही हमने किसी बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजा तो 40 मीटर पर सेकेंड, 4 seconds अपवर्ड जर्नी, 4 seconds डाउनवर्ड जर्नी। आगे ना आइडिया, चलो एक और करते हैं, 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजते हैं, तो अपवर्ड जर्नी के लिए कितना लगेगा, करेक्ट 8 seconds, एंड कमिंग डाउन अनदर 8 seconds, राइट। बट प्रॉपर अजम्पशन याद रखो, कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, देन ओनली इट इज पॉसिबल, करेक्ट। लिख लो इतना, ठीक है। चलो, तो वेलोसिटी तो कैलकुलेट हो गया हमारा, अब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एवरी सेकेंड। चलो देखते हैं कैसे। एक बात याद रखो, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी इज ऑलवेज 5 मीटर। लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी हमेशा 5 मीटर होता है। अब ये 5 मीटर कैसा, देखो, अगर g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ही ये 5 है। अगर g का वैल्यू यू आर टेकिंग 9.81 या फिर 9.8, तो ये हो जाएगा 4.9। किसी और प्लैनेट के लिए तो इट इज ऑलवेज रिमेंबर इट इज g/2। ये कहाँ से आया, एक बॉल को एक 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंको तो अपने आप आ जाएगा तुम्हें। एक लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी में इट इज ऑलवेज g/2 डिस्टेंस कवर। ठीक है, ट्राई करो खुद से, नहीं आता है तो लेट मी नो, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ठीक है, इजी है, आ जाएगा। इट इज ऑलवेज g/2, 9 नहीं है, g/2 है। ठीक है, सो अगर कैलकुलेट करना, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट 10 के साथ कैलकुलेट करना। अगर क्वेश्चन में 9.8 भी पूछा है तो भी 10 के साथ कैलकुलेट करो, फिर अप्रोक्सीमेशन कर देना और 9.81। ठीक है, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। सो कमिंग बैक टू दिस, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी ढूंढो। लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी 2 to 3 सेकेंड, इसमें हमें g/2 डिस्टेंस कवर करना है। g/2 मतलब कितना, यहाँ हमने कितना लिया है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो ये जो लास्ट सेकेंड है इसमें 5 मीटर कवर किया है, और जैसे वी डिस्कस्ड इट इज सिमेट्रिक, तो लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी एंड फर्स्ट सेकेंड of downward journey will have the same displacement, so here it is 5 meter, and again the displacement is in downward direction, तो हम इसको कहेंगे -5। ठीक है, अगर सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे 5, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम इसको नहीं भूलना है, राइट। अब देखो ये 5 है तो ये भी 5 है, सिमेट्रिक है। अगर किसी तरीके से हम ये दो भी डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये भी मिल जाएगा, राइट। अब यहां पर आता है गैलीलियोज ऑड लॉ, गैलीलियोज ऑड नंबर। ये क्या लॉ है, गैलीलियो ने क्या कहा था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर देंगे, कैसे रिलीज करेंगे, जहां पर कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, मान लो कि हवा है ही नहीं वहां पर, इट इज इन वैक्यूम,
तो जैसे ही रिलीज करोगे फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसके नेक्स्ट सेकंड में उससे थर्ड टाइम डिस्टेंस कवर होगा, उसके नेक्स्ट सेकंड में फर्स्ट से 5 टाइम्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इट इज कवर्ड इन 1:2, 3:2, 5:7 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ डिस्टेंस 5 है तो यहाँ हो जाएगा 3 into 5 विच इज 15 मीटर। नेक्स्ट डिस्टेंस हो जाएगा 5 into 5, सो ऑड नंबर 1 into 5, 3 into 5, 5 into 5, और एक होता तो 7 into 5, नेक्स्ट होता तो 9 into 5, राइट। सो सिमिलरली ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना। रिमेंबर ऑड नंबर, नाम ही क्या है उसका, गैलीलियोस ऑड नंबर लॉ, ठीक है। तो इतनी अच्छी चीज इन्वेंट करके रखी है गैलीलियो जी ने, तो यूज करेंगे इसको। 5 मीटर 1 into 5, 3 into 5, 5 into 5। सिमिलरली यहाँ पे भी उसको प्रोजेक्ट करो, ये भी कितना हो गया फिर 15 मीटर का डिस्टेंस, ये भी कितना है 25 मीटर का डिस्टेंस, करेक्ट। अब एक बार देखो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 5 into 5 25 प्लस 15 प्लस 5, कैलकुलेट कर लो, सम अप कर लो, फटाफट से आ जाएगा। 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 5 45। तो कितना ऊपर गया ये बॉल, ये जो बॉल तुम लोग गार्डन में जाके फेंकते हो ऊपर, अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो कितना ऊपर जाएगा 45 मीटर। कहाँ सैटेलाइट की बात कर रहे थे, है ना। सो यहाँ पर कोई जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, द हाइट्स आर वेरी लेस, राइट। सो इट इज फ्रॉम हियर टू हियर 45। अगर पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू लेट्स से 0 टू t इज इक्वल टू 4, क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक चलना है, t इज इक्वल टू 4। सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर t इज इक्वल टू 0 से यहां तक, कितना है 25 प्लस 15 40 हो गया, राइट। सिमिलरली फ्रॉम हियर t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 5 तक कितना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस, राइट। बीच में बॉल कहाँ जाके घूम के आया है कोई लेना देना नहीं। इजी ट्रिक है ना, देखो इस ट्रिक से हमने हर इन बिटवीन डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अगर हमसे मान लो पूछा गया है टाइम t इज इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस 5 प्लस 5 10। कितना डिस्प्लेसमेंट है t इज इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक, कितना डिस्प्लेसमेंट है 0। देखो यहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गया 1 सेकेंड के बाद, राइट। सो t इज इक्वल टू 3 के अबाउट दोनों सिमेट्रिक चलेगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको, इजी ट्रिक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक ऑन द सेम कंसेप्ट। देखो हमारे पास ये ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। इनिशियली द वेलोसिटी वाज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट वाज 20 हियर, देन 10 एंड देन 0। यू गॉट दिस डिफरेंस, राइट। 30 से 10 कैसे आया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, राइट। सो ऑल दीज वैल्यूज आर मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट इज स्पीड, और we can say velocity। velocity है तो upward, यहाँ पर all the velocities are downward and with the same values, right। so we have to draw speed time curve and velocity time curve for this case, okay। जेई में भी काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं, तो एक बार ग्राफ को समझते हैं। v is equal to u plus at, right। Now see all the powers 1 1 1 1, सबका पावर 1 है, तो ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लाइक y is equal to c plus mx। On y axis you are going to draw velocity, on x axis you are going to draw time, right। अब देखो इसको कैसे करना है। So this is velocity and this is your time। u initial velocity, कितना है इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी है 30, फिर वो 20 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया, एंड देन फाइनली इट इज अगेन इंक्रीजिंग बट इन नेगेटिव साइन, राइट। सो वी विल जस्ट टेक इट लिटिल बिट हियर, लेट्स से t initially it is 30 positive 30, so I'll mark it here, it is plus 30। after
certain time it has reached, let's say here t is equal to 3 सेकेंड पे ये 0 पे पहुंच गया है वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी 0 है एंड t is equal to 3. And since it's a straight line, it is going to be like this. And if you calculate the slope of this, that is m, that will be equal to minus 10, which is nothing but g. डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, राइट. इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद देखो माइनस में वेलोसिटी अगेन बढ़ता जा रहा है. देखो तो जैसे टाइम एक्सिस पे चलेंगे इसी स्लोप के साथ स्लोप चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. So somewhere here it will reach and this time is 6 सेकेंड, करेक्ट. और ये कितना वैल्यू है देखो फिर से यहाँ पर डाउनवर्ड 30, so this is minus 30 मीटर पर सेकेंड. दिस इज इन सेकेंड, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम वेरीफाई कर सकते हैं. एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो कैसे वेरीफाई करना है इसको. देखो द बॉल इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट विल रीच द सेम पॉइंट अगेन. वो तो हमने थोड़ा साइड में ड्रॉ किया है, राइट. आता तो वही है, उसी लाइन के साथ आता है नीचे. तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड हियर. सो फाइनली व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 0. घूम के वापस वही तो आ गया ना. तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए एरिया अंडर वीटी कर्व शुड बी 0. देखो अपवर्ड एरिया पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे, डाउनवर्ड एरिया नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे, इक्वेट करेंगे मतलब ऐड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, फाइनली 0 हो जाएगा, राइट. सो वेरीफाई कर लिया हमने. ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम कर्व, राइट. इट्स अ स्ट्रेट लाइन. अभी इसी को प्रोजेक्ट करेंगे स्पीड टाइम के लिए. देखो स्पीड क्या है, स्पीड इज the magnitude of instantaneous velocity. Am I right? Speed is nothing but magnitude of instantaneous velocity. Magnitude, only magnitude उठाना यहाँ से. तो देखो ये speed है, I'm not writing v, you can get confused. यहाँ velocity है, यहाँ speed है. So time देखो यहाँ पर 30 से 0 तक बिल्कुल as it is चलेगा. This is initially 30 when time was equal to 0 if taken in meter per सेकेंड वर्सेस सेकेंड. ये ऐसे ही चलेगा यहां तक. लेकिन क्योंकि स्पीड क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. तो ये जो लाइन है नेगेटिव में, ये नेगेटिव में हो ही नहीं सकती. स्पीड टाइम कर्व कभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि स्पीड और टाइम दोनों ही नेगेटिव नहीं होते कभी भी. सो इट इज ऑलवेज बीन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट. हमेशा सब कुछ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो ये जैसे लाइन है इसी को ऐसे कैसे हम कर देंगे मिरर इमेज. सो ये यहाँ पर व्हेन यू आर रीचिंग t is equal to 6 it is again having the same value as 30. अब इसको वेरीफाई करते हैं. देखो यहाँ पर आए हम, जब यहाँ पर पहुंचते व्हाट इज द स्पीड, 30 मीटर पर सेकेंड. t is equal to 6, व्हाट इज द स्पीड, 30 मीटर पर सेकेंड. चलो लिख लो इसको. दिस इज t is equal to 3 सेकेंड. सो एक बात याद रखना, वेलोसिटी का जो भी पार्ट नीचे है एज इट इज मिरर इमेज करना है ऊपर, ठीक है. सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच ग्राफ्स, नॉट फॉर दिस केस, इस केस के लिए एक ही है, बट एक स्पीड टाइम कर्व के इनफाइनाइट वेलोसिटी कर्व हो सकते हैं, ठीक है. बाकी किसी केस के लिए कभी डिस्कस करेंगे वो भी. लिख लो इसको. So here we have a question. A hot air balloon starts rising up. Starts again. Underline this word. Starts rising up. मतलब initial velocity 0. Rest पे बैठा आराम कर रहा है. फिर starts rising up. With uniform acceleration. जैसे uniform दिख गया, happy हो जाओ. क्योंकि क्या करना है हमें? Kinematic equation लगाने का. हम पूरा यहाँ पर utilization कर सकते हैं. Uniform acceleration. Which means kinematic equations are valid. कितना है acceleration? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्या किया, एक हॉट एयर बलून है, चलो इसको पहले बनाते हैं. ग्राउंड है लेट्स से, हॉट एयर बलून, एंड यहाँ पर ऐसे तुम अपने खड़े हो दोस्त के साथ, ठीक है. और जैसे ये हॉट एयर बलून ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, पहले रेस्ट पे था. जैसे ही ऊपर चलता है क्या वेलोसिटी है इसकी, क्या एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. A ball is released from it at t is equal to 5. तो t is equal to 5, ये कहीं यहाँ पर होगा, लेट्स से ये कहीं यहाँ पर है, ठीक है. मस्त हवा में पहुंच गए हैं.
नीचे जमीन है, हमने एक बॉल को कर दिया रिलीज, ठीक है। अब इस बॉल को रिलीज करने के बाद, ठीक है, वी हैव टू फाइंड टाइम इट टेक्स द बॉल टू रीच द ग्राउंड and also discuss the path followed, because I am sure for many of you this question will be a life changing question. You will find that अरे ये कैसे है, ये तो पता ही नहीं था। देखो यहाँ पर ये जैसे ही हॉट एयर बलून यहाँ पर पहुंचा, लेट्स से यहाँ पर है, इस बॉल को कर दिया रिलीज। रिलीज मतलब क्या, ये रिलीज वर्ड बहुत कुछ बताता है, कहाँ पर गया ये, इट इज रिलीज्ड। रिलीज मतलब छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर मैं हूं और मैंने इस छोटे से इस कवर को मैंने रिलीज करना है। रिलीज मतलब नो इनिशियल वेलोसिटी, नीचे जाएगा, राइट। तो इसको जैसे रिलीज कर देंगे कहाँ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है तो नीचे की तरफ खींचा चला जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और उसकी डायरेक्शन में मूवमेंट उसका स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर सोचो ये सेम केस नहीं है। यू आर स्टैंडिंग विद योर फ्रेंड इन अ मूविंग हॉट एयर बलून, ये चल रहा है, तो ये जैसे ही ऊपर जा रहा है इसके पास कुछ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है, देखो कितनी वेलोसिटी है, एट t इज इक्वल टू 5 क्या वेलोसिटी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस 80। फटाफट माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2, टाइम कितना लगा 5, 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, तो अपवर्ड इस बॉल के पास भी वेलोसिटी, क्यों बॉल के पास क्यों है, क्यों बॉल के पास भी तो रहेगी, जब बॉल भी हॉट एयर बलून में ही तो है। तो एक ऐसा बॉल जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अभी देखो योर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब अगर कोई यहाँ तुम्हारा तीसरा फ्रेंड ग्राउंड से देख रहा है, उसको लेके नहीं गए हम, यहाँ यहीं पे रखा है, वो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, तो उसके लिए तो ये बॉल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज इट हैज अपवर्ड वेलोसिटी। रिमेंबर इनर्शिया, बॉल ऑलरेडी मोशन में है, बॉल क्या सोच रहा था कि ये ऊपर जा रहे हैं तो मुझे भी लेके जाएंगे, मेरे पास भी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, बट हमने उसको रिलीज कर दिया, हमने छोड़ दिया उसको, तो बेचारा खुशी खुशी में ऊपर चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, अभी भी स्पीड है उसके पास, तो कितना ऊपर चलेगा, याद करो 30 मीटर पर सेकेंड तो 3 सेकेंड ऊपर चलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड तो कितना ऊपर चलेगा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इट विल कवर अपवर्ड डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी कितना है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो 1 सेकेंड में ये वेलोसिटी हो गई खत्म, एग्जॉस्ट। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से फिर आई शो इट इन लिटिल बिट डिस्प्लेस फ्रॉम दैट एंड फाइनली ये ग्राउंड पे पहुंचेगा। ठीक है, सोचो यहाँ पर जब भी रिलीज किया है, इट्स नॉट दैट कि जब भी रिलीज किया इट विल फॉलो डाउनवर्ड पाथ, नेवर। देखो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अगर अपवर्ड है तो थोड़ा तो अपवर्ड मूव करेगा जब तक जीरो नहीं हो जाता, और एक बार जीरो हो गया तो उसके बाद ये नीचे आने वाला है। ठीक है, तो एक बार ऑब्जर्व करते हैं क्या करना है। देखो क्वेश्चन तो एज इट इज, बट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द पाथ फॉलोड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमें समझ में आ गया कि बॉल विल मूव अपवर्ड। सोचो तुम ऐसे हॉट एयर बलून में हो और क्या किया, इस बॉल को रिलीज कर दिया, रिलीज कर दी, तुम्हारे लिए तो वो नीचे जा रहा है, बट जो ग्राउंड से देख रहा है उसके लिए इसका पाथ होगा आफ्टर रिलीज इट विल मूव अप फॉर 1 सेकेंड एंड देन इट विल मूव डाउन टिल इट रीचेस ग्राउंड। अब ग्राउंड कहां पर, कितना ऊपर है, देखो ये 5 सेकेंड में कितना ऊपर गया, तो ये डिस्टेंस है s, फटाफट वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किसके लिए कर रहे हैं हम, हॉट एयर बलून के लिए। बलून ऊपर पहुंचा है 5 सेकेंड में, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू टी का स्क्वायर, 5 सेकेंड में कहां पहुंचा, 25 मीटर ऊपर। यहां पर कितना है 25 मीटर। अब हम आ गए इस हॉट एयर बलून की फ्रेम से बॉल के फ्रेम में। बॉल के बारे में सोचो, उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और नीचे उसको कितना कवर करना है 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इस हॉट एयर बलून की कहानी खत्म हो जाती है। वी डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट व्हाट हॉट एयर बलून इज डूइंग नाउ। जैसे हम इस बॉल के एट्रीब्यूट्स हमने निकाल लिए हैं वैसे ही बलून अब साइडलाइन हो गया है। अब सोचो इसके पास फॉर नाउ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है अपवर्ड, राइट, and it has to cover downward distance. S is equal to ut plus half at
square. We have to find time, the time it takes to reach the ground. S कितना है? It has to cover 25 meter, but in downward तो minus 25. Initial velocity 10, कहाँ पर? Upward, तो कौन सी होगी साइन? Positive 10 into this t, करेक्ट, प्लस हाफ. अब कौन सी एक्सेलरेशन है? क्या अभी भी ये एक्सेलरेशन है? नहीं. ये किसका है एक्सेलरेशन? हॉट एयर बलून का. हॉट एयर बलून तो एलिमिनेट हो गया है अभी. ये बॉल अभी किसके स्वाधीन है? किसके पास है ये बॉल? ग्रेविटी के पास है. तो एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसकी डायरेक्शन में? नीचे की. तो नेगेटिव इंटू टी स्क्वायर. वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस. टी स्क्वायर टी, एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं. कितना हो जाएगा ये? 5t स्क्वायर टेकन ऑन अदर साइड माइनस 10t माइनस 25 इज 0. और इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, राइट. 5 भी कट हो जाएगा. टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. सॉल्व इट एंड गेट t इज इक्वल टू सेकेंड. So you must have tried this. Once again we will do ax square plus bx plus c is equal to 0. Standard quadratic equation. इसमें देखो कंपेयर करोगे तो you will find a is equal to 1, the coefficient of this first term. Second term के लिए b कितना है? -2 and c कितना है? -5, right? अब इसको सॉल्व कैसे करना? व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, तो रूट्स आर x इज इक्वल टू, याद रखना इसको, मैथ का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. a को पुट करो, b c, substitute everything, you will get this x, which means nothing but time here, because quadratic equation is in time. टाइम का हो जाएगा 1 प्लस रूट 6, एक टर्म आ जाएगी, एंड 1 माइनस रूट 6, ये दूसरा टाइम है. एंड हमें पता है टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो व्हेन यू आर राइटिंग दिस माइनस साइन, ऑल्सो थिंक अबाउट व्हाट विल बी रूट 6. रूट 4 तो 2 है, मतलब ये डेफिनेटली जो है ये टर्म वो हमेशा एक से बड़ा ही आएगा. तो मतलब ये टाइम एलिमिनेट एंड दिस टाइम इज सिलेक्टेड. ठीक है, सो टाइम हमेशा पॉजिटिव है एंड यू विल गेट ओनली वन ऑप्शन एज नेगेटिव. ठीक है, सॉरी पॉजिटिव. सो यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस. लिख लो इसको फटाफट. सो था ना ये लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन. जब भी हम बॉल को रिलीज करते हैं हमें लगता है नीचे मूव करेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट ऑलवेज. इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम, then it will have the same velocity as that of the frame. It will continue with that velocity, it will start continuing with that velocity, and फिर उसके पास जो दूसरा acceleration है वो act करेगा इसके ऊपर. ठीक है, so एक question हो गया है हमारा solve, and now you are happy with this, right? तो ऐसे ही लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस जहां तक हमने पढ़ा है उसका कैसे अलग अलग एप्लीकेशन करना है, यही हम सीखते रहेंगे. घर में ही रहो, लॉकडाउन है बाहर, तो स्टे सेफ. एंड वैसे भी सैनिटाइजेशन, मास्क एंड एवरीथिंग, उससे अच्छा है घर में बैठ के पढ़ो, राइट. सो स्टे कनेक्टेड, होमवर्क अच्छे से करना, फॉर्मूले रिवाइज करते रहो, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. दैट्स द ओनली वे टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. जितने हो सके क्वेश्चंस सॉल्व करो और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग्स करो. ठीक है, stay connected. We will meet in the next lecture with a very new concepts and new applications of them. Okay, thanks for now. Thank you so much for your time. Take care. Hello everyone, welcome to the India's largest learning platform, Unacademy. I am Ankita and today we are going to discuss Unacademy subscription. Now most of the students ask me, ma'am, why to buy this subscription, why to put extra money where all the videos are available on YouTube, and that too absolutely free of cost. But my friend, that's not the only thing here. Unacademy has more benefits to offer you, and these are the benefits. We are going to discuss them one by one. But before that, let us think about what Corona taught us. Corona taught us you can learn so many things by sitting at your home,
with a safe zone around you, without going out in the crowded areas, the local stations, the crowded buses and metros, using sanitizers, using masks, and again taking risk of your health, your life, and the people around you, your loved ones. So don't take risk of your life. Sit at home and prepare for your exams in the best way with the help of Unacademy. So what are the benefits? The benefits are you can learn from the India's best educators. And these educators will meet you daily, they'll meet you daily in interactive live classes. And also here the word interactive is very important. You are able to clear your doubts as well, right? And the next is structured courses. For your specific class, there will be structured courses by different teachers available. And also the PDF notes, you'll be able to download them and learn from them, study them in the offline mode as well. So you don't need internet connection 24/7 for that, right? And last but not the least, very important, as you study more and more, you should be able to understand where I stand exactly, right? Where is my knowledge? How I stand with the other people. So for that, we are here with the live mock test. You will be able to understand how your score is and your friends' score as well, and the live quizzes as well. So that will test your knowledge, that will help you understand which are the parts you need to focus more, which are the parts you are confident enough about it. And all these benefits are very at attractive prices, and these attractive prices are also available with the no cost EMIs. Okay, so I think there cannot be any better option than this. So Unacademy, today only secure your bright future with the safe zone and without risking your and your loved one's life. So take care of yourself and secure your future with Unacademy subscription. See you. Thank you. I will brief you about how we at Unacademy help students to crack their examinations. And let us see what are the benefits. As we discussed, we are going to get everyday live classes, then extensive syllabus coverage. Whatever your syllabus is, it will be covered. We are sure about that. Then doubt solving sessions. That is very important. When you are solving numericals and you are getting doubts or your concepts are not getting solved, that is a really frustrating state. So here definitely all your doubts will be cleared. And also we have unlimited access to courses. You can get admitted to as many courses as you want. Also you will be able to take weekly mock tests. So you will be able to understand how much you have prepared for the examination, how you exactly stand as compared to different AIRs, and then lecture notes will also be provided. These lectures, who are going to take these lectures? These lectures will be taken by your legendary India's best educators. Okay, and what are the different scholarship hierarchy is given? So let us see. Different scholarships are provided. You can see different percentage are there for different ranks, and surely you will be able to achieve one of them. And now also we have 100% coverage of all the competitive exams. We have IIT JEE, NEET, then Foundation, NTSC, Olympiads. From that IIT JAM, GATE, ESE, NEET, everything we have here, right? So you name it and we have it, right? So this Unacademy Plus subscription will be calling you, and here you can see that IIT JEE subscription, for example, I have given here how much you have to pay per month. So you can see that we can see, and also you will have Iconic subscription as well for different packages. Price is also given. So we would be waiting to see you at Unacademy subscription. Okay, so see you, take care, and do subscribe to this.